हेलो फ्रेंड्स, इग्नू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम से हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर, जो सब्जेक्ट कोड MGSE 009 का है, और ये MAGD सब्जेक्ट कोड में भी यह क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। Labor refers to the exploitation of children through any form of work that deprives children of their childhood interference with their ability to attend regular school and is mentally, physically, socially and morally harmful. In the world poorest countries, around 4 children are engaged in child labor, the highest number of whom 29% live in sub-Saharan Africa. In 2017, four American nations, Mali, Benin, Chad and Guinea-Bissau, witnessed over 50% of child age 5 to 15 working. Worldwide, agriculture is the largest employer of child labor. The vast majority of child labor is found in rural setting and informal urban economics. Children are predominantly employed by their parents rather than factories. Poverty and lack of schools are considered the primary causes of child labor. किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण को संदर्भित करता है, जो बच्चों को उसके बचपन से वंचित करता है, उनकी नियमित स्कूल जाने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नैतिक रूप से हानिकारक होता है। जो भी बाल श्रम बच्चे बचपन से ही काम करने लगते हैं, वो स्कूल ट्यूशन बराबर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है और वो काम करते करते मानसिक, शारीरिक इन सब रूप से बीमार होने लगते हैं। ये सब उनके लिए हानिकारक हो जाता है, इसलिए बच्चों को बचपन से ही काम पर नहीं लगाना चाहिए। दुनिया के सबसे गरीब देशों में लगभग 4 में से 1 बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है। दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं, उसमें से 4 में से 1 बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है, जिनमें से सबसे अधिक 29% उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। 2017 में 4 अफ्रीकी देशों माली, बेनिन, चाड और गिनी बिसाऊ में 5 से 14 आयु वर्ग के 50% से अधिक बच्चे काम कर रहे थे। दुनिया भर में कृषि बाल श्रम का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बाल श्रम का विशाल बहुमत प्रणाली ग्रामीण परिवेश और औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। बच्चे कारखानों के बजाय मुख्य रूप से अपने माता पिता के द्वारा नियोजित होते हैं और गरीबी और स्कूलों की कमी के कारण बाल श्रम का प्राथमिक कारण माना जाता है। In 2015, the country of India is home to the largest number of children who are working illegally in various industrial industries. Agriculture in India is the largest sector where many children work at earlier ages to help support their family. Many of these children are forced to work at young age due to many family factors such as unemployment, large families, poverty, and lack of personal education. There is often the major causes of the highest rate of children labor in the India. On 23rd June 1757, the English East India Company defeated Siraj Ud-Daula, the Nawab of Bengal, in the Battle of Plassey. The British thus became masters of East India, Bengal, Bihar, Orissa, a purpose region with a flourishing agriculture, industry and trade. These led to many children being forced into labor force due to the increasing need of cheap labor to produce large number of goods. Many multinational often employ children because that they can be required for less pay and have more endurance to utilize in factory environments. Another reason many Indian children were hired was because they lack knowledge of their basic rights. They did not cause trouble and complain, and they were often more trustworthy. The innocence that comes with childhood was utilized to make a profit by many and was encouraged by the need for family income. में भारत देश विभिन्न औद्योगिक उद्योगों में अवैध रूप से काम कर रहे बच्चों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। भारत में कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां बहुत से बच्चे कम उम्र से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनमें से कई बच्चे कई पारिवारिक कारणों जैसे बेरोजगारी, बड़े परिवार, गरीब और माता पिता की शिक्षा की कमी के कारण कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर है। यह अक्सर भारत में बाल श्रम की उच्च दर का प्रमुख कारण है। 23 जून 1757 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराज उद दौला को हराया। प्लासी के युद्ध में बंगाल, इस प्रकार ब्रिटिश पूर्वी भारत के बंगाल,
बिहार उड़ीसा के स्वामी बन गया और एक समृद्धि कृषि उद्योग और व्यापार के साथ एक समृद्ध क्षेत्र। इसने कई बच्चों को बड़ी संख्या में उत्पादन करने के लिए सस्ते श्रम की बढ़ती आवश्यकता के कारण श्रम के लिए मजबूर किया। चीजें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर बच्चों को काम पर रखती क्योंकि उन्हें कम वेतन पर भर्ती किया जा सकता है और कारखाने के वातावरण में उपयोग करने के लिए अधिक सहन शक्ति होती है। कई भारतीय बच्चों को काम पर रखने और एक और कारण था कि उन्हें अपने मूल अधिकारों का ज्ञान नहीं था, जिससे उन्हें परेशानी या शिकायत नहीं हो और वे अक्सर अधिक भरोसेमंद होते थे। बचपन के साथ आने वाले मासूमियत का उपयोग कई लोगों के लाभ कमाने के लिए किया और पारिवारिक आय की आवश्यकता को प्रोत्साहित किया। Due to many children being illegally employed, the Indian government began to take action to reduce the number of children working and to focus on the importance of facilitating the proper growth and development of children. International influence helped to encourage legal action to be taken in the India, such as the Geneva Declaration of the Rights of Children Act was passed in 1924. This act was followed by the Universal Declaration of Human Rights in 1948, to which incorporated the basic human rights and needs to children to proper progression and growth in their younger years. These international acts encouraged major change to the work force in India, which assured in 1986 when the Children Labor Prohibited and Regulation Act was put into place. This act prohibited hiring children younger than the age of 14 and from working in hazardous condition. कई बच्चों के अवैध रूप से नियोजित होने के कारण भारत सरकार ने काम करने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की और बच्चों की उचित वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के महत्व को ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भारत में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, जैसे कि बच्चों के अधिकार नियम की जिनेवा घोषणा 1924 में पारित की गई थी। इस अधिनियम के बाद 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसके बुनियादी मानवाधिकार को शामिल किया गया और अपने छोटे वर्षों में उचित प्रगति और विकास के लिए बच्चों की जरूरत है। इन अंतर्राष्ट्रीय कृत्यों ने भारत में बल में बड़े बदलाव को प्रोत्साहित किया, जो 1986 में हुआ जब बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।